Hello, good afternoon, FIBCom students. Let's come for the EVS lecture. Yesterday we were discussing about the concept of effective waste management or the concept of 7Rs. Now we will discuss today the pollution from the solid waste and the health hazards. If there is no proper waste management system, then the rate of reuse and the degrader of the waste does not match the rate of the production of the waste. This results the accumulate of the waste material at dumping yards. The waste will be spread on the street corners, drains and plots. Sometimes the people set fire to accumulate their waste, and waste accumulated occurs when the different types of waste material get mixed up there, making it different or make it difficult to segregate the usable waste material. Accumulation of the waste and the persistence creates the problems. So here we can say that अगर वेस्ट का ठीक से मैनेजमेंट ना हो तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अगर उसका वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो ठीक से उसका इस्तेमाल ना किया गया उसको रीयूजेबल ना किया गया हो तो फिर उसको वो वेस्ट मटेरियल को किसका उसका रिजल्ट क्या होता है वो डंपिंग यार्ड्स में हमें दिखाई देते हैं जिसकी वजह से कुछ बार कुछ लोग जो होते हैं कि उसको उस वेस्ट को जला देते हैं तो जलाने के जो जला हुआ मटेरियल होता है ना उसको हम उसमें से यूजेबल जो मटेरियल तो वो जल गया तो उसको हम अलग नहीं कर सकते तो accumulation is the accumulation of the waste and the persistent creative or problem create होते हैं. Now we will see the problems of accumulation of the waste. Unavailability of the land. The land where the waste is thrown cannot be used for the useful purposes. In the residential areas, walking and other movements are obstructed if the garbage is thrown on the street and the pavements. Areas where the garbage is dumped are not available for the sports and the recreational or the commercial activities. It is expensive, difficult to treat water body or the land area to make it usable. अगर वहाँ पे एक बार जो कचरा डाल दिया तो फिर जो हम बोलते हैं कि उसको कचरा डाल दिया उस जगह में कचरा डाल दिया तो ना ही उस जगह को हम फिर स्पोर्ट्स के लिए या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पर उसको ठीक करने में बहुत सारे हम बोलते हैं कि वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है बहुत सारे पैसे लग जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वेस्ट को उसका मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूशन ऑफ द लैंड ये शायद हम देख चुके हैं ये शायद हम देख चुके हैं ये दो पॉइंट देख चुके हैं ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉक्सिक वेस्ट कैन cause the destruction of the natural habitat. For example, hot water thrown out from the industry into the sea and the rivers and tanks and canals can kill the sensitive aquatic plants and animal species. For example, corals in the sea and which changes the biotic composition of the marine ecosystem. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह से कि अगर जो इंडस्ट्री का जो हम बोलते हैं ना कि जो पानी फेंका जाता है नदी नाले में और उसका जो गर्म पानी जो फेंका जाए नदी नाले या टैंक में या कैनल्स में तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नदी में या सी में या समुद्र में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं तो कुछ जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं तो वो मर जाती है जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है then next point is dumping of the solid waste. The solid waste consists of the immersed ideas and dead bodies and nirmalya nirmalya or the leaves of the flowers used for worship, which are thrown into the water, can disturb the wetland ecosystem.
तो डंपिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कि इंसान मरने के बाद जब उसकी श्राद्ध विधि वगैरह किया जाता है तो उसकी अस्थियाँ वगैरह विसर्जन किया जाता है, पानी में विसर्जित किया जाता है। फिर निर्माल्य उसको बोलते हैं कि जो हम फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो भगवान को दिखाए हुए थे फ्लावर्स, वो नदी नाले में हम विसर्जन कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वेटलैंड ecosystem disturb हो जाता है. The sewage adds the high level of the nitrate and the phosphate to the wetlands, and algae and water hyacinth grow faster and thus crowd out the other plants. कि उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो सब कुछ गटर कि फॉर एग्जांपल सीवेज जो पाइपलाइन होती है, तो सीवेज पाइपलाइन में नाइट्रेट और फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बोलते कि वाटर हाइसिंथिक वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है और दूसरे प्लांट वहाँ पे नहीं हो सकते. देर इज an increased use of plastic bags which are thrown into the garbage. These are often eaten by the animals and the sea creatures. कि जो हम बोलते हैं ना कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हम रास्ते पे फेंक देते हैं, वो ज़्यादातर वो तो एनिमल्स या सी क्रीचर्स खाते हैं. तो प्लास्टिक कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय दिस एनिमल्स, वो ऑफन डाई कि प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं. बर्ड यूज कलरफुल प्लास्टिक स्प्रिंग्स टू मेक देयर नेस्ट. तो जो हम बोलते पक्षी वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर वो प्लास्टिक का इस्तेमाल किस तरह अपने नेस्ट को या अपना हम बोलते हैं कि अपना घर बनने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. सोशल इम्पैक्ट इन द सिटीज इट इज़ कॉमन टू सी द पुअर पीपल मूविंग अराउंड द गार्बेज बीन्स लुकिंग फॉर द रिसाइकेबल वेस्ट मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मटेरियल आइटम्स दैट दे कैन सेल एंड ऑन लिटल मनी. कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सोशल इम्पैक्ट कैसे दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल हमको कैसे पता चलता है अम, क्योंकि कि शहरों में हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कचरा कूड़ा उठाते हैं, वो हर गली गली या जहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, कचरा है या डंपिंग गैस में हमें वो नज़र आते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स ही इकट्ठा करते रहते हैं और बेच देते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत कमा सकें. They sometimes get injured due to sharp items found in the garbage. कि कचरे में जैसे शार्प आइटम डाले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कांच के टुकड़े वगैरह ऐसे डाले जाते हैं तो वो इंजर्ड भी हो जाते हैं. Improper municipal garbage collection services and careless disposal of household waste lead to such situation where the poor people who go in search for recyclable waste hurt themselves. कि म्यूनिसिपल गार्बेज हो कि जैसे हाउस होल्ड वेस्ट इकट्ठा किया गया हो लेकिन उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं. तो ये जो लोग ढूंढने जाते हैं कि रिसाइकेबल मटेरियल ढूंढने जाते हैं, वहाँ उनको वहाँ उनको चोट लगती है या इंजर भी हो जाते हैं. तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए. देन बायो एक्यूमुलेशन पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स गेट कैरिड अवे थ्रू द रन ऑफ वाटर एंड एंटर्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स. तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेस्टिसाइड का जब इस्तेमाल किया जाता है और जब वो पानी के साथ बह जाता है तो वो पानी के जैसे बाढ़ आती है और पानी के साथ बह जाता है तो वो नदी नाले में पहुंच जाता है. पेस्टिसाइड्स heavy metals like mercury, lead and some other chemicals can get absorbed by the small plants and microbes thus remain in the body. कि पेस्टिसाइड में जैसे मर्क्यूरी, लीड और अदर जो केमिकल्स होते हैं, दूसरे केमिकल्स होते हैं कि जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और माइक्रोब्स के ऊपर रहते हैं और वो दूसरों मीन्स वो जो हम खाते हैं या प्लांट्स वगैरह जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो उसमें वो हमारे बॉडी में रह जाते हैं. दिस फिनोमेनन इज बायो अक्यूमुलेशन occurs when occurs because these waste compounds are neither metabolic nor excreted but instead of great
get stored the tissues of organism। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे बायोकेमिकल की वजह से क्या होता है कि जो वाटर जो कंपाउंड होता है ना ही वो क्लीन होता है ना ही वो एक्सक्रीट होता है, तो जिसकी वजह से वो छोटे छोटे जो टिश्यूज होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो पानी में इकट्ठा होते हैं। देन biomagnification, several of compounds accumulate inside the body of organism get concentrated as they move from one organism to other organism through the food chain. For example, mercury, some mercury containing waste which are dumped into the rivers enters the aquatic food chain and building up the higher levels in the large organism. The small fish, the larger fish or the birds eat the small fish as well as the human who eat the fish may be all affected and suffer from the mercury poisoning. Top consumer of the food chain will have the highest level of the concentration of the toxin. This phenomenon is called the मैग्निफिकेशन, कि जैसे उसके जो हम बोलते हैं टिश्यू जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज होते हैं तो वो पानी में रहते हैं। कि फॉर एग्जांपल वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड की चेन की तरह इस्तेमाल होते हैं। कि फॉर एग्जांपल जो मर्क्यूरी है वो एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। कि फॉर एग्जांपल जो मर्क्यूरी होता है वो पानी में चला जाता है या नदी नाले में चला जाता है, वो फूड चेन के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर लेवल पे उसका ऑर्गेनिज्म बढ़ता ही जाता है। कि फॉर एग्जांपल वो स्मॉल फिश जितने भी हम बोलते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स है या एनिमल्स ही है वो उसको खाते हैं तो फिर उनकी पेट में चला जाता है, और बाकी जो इंसान जो फिश खाते हैं उनके पेट में भी चला जाता है। तो इस तरह से वो पॉइजन के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, टॉक्सिन पैदा होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अभी उसके आगे नया क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन मुंबई। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट encompasses the planning, engineering, organization, administration, finance and legal aspect of the activities associated with the generation, storage, collection, transfer, transport, processing, disposal of municipal solid waste, household garbage, rubbish, street litter, construction of the debris, sanitation residue is an environmentally compatible manner and adopting the principle of the economic, aesthetic, energy and the conservation। तो यहाँ पे क्या बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, कि म्यूनिसिपल जो गार्बेज होता है, म्यूनिसिपल जो मैनेजमेंट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग, इंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। कि फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड गार्बेज होता है, फिर होता है स्ट्रीट लिटर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेब्रिस होता है, सैनिटेशन होता है, रेसिड्यूज होता है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम, द फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। That first point is generation. The generation rates are used to evaluate the reuse and the recycling feasibility and the processing and the disposal requirement। तो जनरेशन क्या करती है, जनरेशन की वजह से बोलते हैं कि हम उसको जनरेशन बढ़ती जाने वाली तो उसका रीयूज किस तरह किया जाए, रिसाइकेबल किस तरह से उस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और उसको डिस्पोजल करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। On the site handling, storage and processing, it is necessary to make on the site preparation of the waste for reuse on the recyclable or the disposal। Reuse indicates that the waste is usable, reuse indicates the waste is usable and its current form or with only minor modification as the raw material for the other production। कि इसमें क्या बताया गया है कि रीयूज करके उस मटेरियल को किस तरह से करंट फॉर्म में लाया जाए, उसका रॉ मटेरियल भी दूसरे प्रोडक्शन के लिए काम आना चाहिए। द रिसाइकेबल applies to converting the waste on the alternative use in the different form, प्लास्टिक बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर। कि जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक होता है तो उसके बनाई जाती है प्लास्टिक बॉटल्स, और जो पेपर होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकल करके न्यूज़पेपर के हिसाब से उसको बनाया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन।
This is the physical gathering of the waste and may vary from garbage collection from the homes to collecting the toxic chemical waste from the industries. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं फिजिकल गैदरिंग ऑफ वेस्ट मीन्स फिजिकल गैदरिंग ऑफ वेस्ट उसको हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अब घर घर का जो कचरा होता है उसको म्यूनिसिपल गार्बेज में चला जाता है और जो उसमें टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेब्रिज और समथिंग लाइक दैट तो वो इंडस्ट्री का जो केमिकल वाला कचरा है तो वो भी उसमें चला जाता है ट्रांसफर एंड ट्रांसफर consolidation of the collection waste from the bulk transport to the processing and the disposal facility. तो consolidation means बोलते consolidation का मतलब consolidation बताते हैं कि जो transport for example the collect waste from the bulk transport means हम बोलते transport ट्रांसपोर्ट से जो निकला हुआ कचरा है और दूसरा होता है उसको उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए उसको लिए टाइम लगता है एंड प्रोसेसिंग एंड द रिकवरी इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज एम्प्लॉयड टू अलाउ द रिकवरी ऑफ द वेस्ट एज द रॉ मटेरियल और एज एनर्जी एंड द प्रिपरेशन ऑफ द वेस्ट फॉर द डिस्पोजल क्या तो इसके लिए क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग एंड रिकवरी इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज एम्प्लॉयड टू अलाउ द रिकवरी ऑफ द वेस्ट मीन्स रॉ मटेरियल का इसका इस्तेमाल करके कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल से उसका इस्तेमाल करके उस मीन्स उसको फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है कि प्रिपेयर करने के बाद उसका डिस्पोजल किस तरह से हम उसको देखा जाता है डिस्पोजल इज इंसिनरेशन एंड लैंड फिलिंग Incineration and the landfilling are the two common disposal alternatives for reusable and non-recyclable waste. तो हम क्या बोलते हैं उसको इंसिनरेशन एंड लैंडफिलिंग ये डिस्पोजल करने के दो तरीके हैं The next point is solid waste generation in the metro cities. अभी सॉलिड वेस्ट जनरेशन इन द मेट्रो सिटीज इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरियाज ऑफ द urban development in India. 23 metro cities in India generate about 30,000 tons of the waste per day and about 50,000 tons of waste is generated daily from the last one cities. Piles of garbage and solid waste of all types of litter everywhere have become the common sight in our urban life. Most of the civic bodies are facing considerable difficulties in providing adequate services. There is a threat to the public health, in particularly the environment quality in the general. कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि जैसे हम बोलते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी होती है कि यहाँ पे देखिए आपको नंबर्स दिए गए हैं तो जितना जनरेट करते हैं फॉर एग्जांपल 30,000 टन और दूसरा है 50,000 टन इतना वेस्ट वो जनरेट करती है और जिसकी वजह से क्या होता है उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया एज पर द रिसेंट सर्वे As per the recent survey, the quality of the municipality solid waste generated in Mumbai was 5,355 tons per day, and per capita waste generated was 0.436 kg per day. An estimated annual increase in per capita waste quantity is about 1.33% per year. तो यहाँ पे देखिए आपको मुंबई में पर डे में कितना 5,355 टन इसका जनरेट किया जाता है तो ये तो आई थिंक बहुत साल पहले का है लेकिन अभी उसका इंक्रीमेंट मीन्स उसका नंबर इंक्रीज हो गया होगा द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेक्शन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट section of the solid waste in Mumbai is quite high due to the habit of using fresh vegetables. तो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमको ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि
मुंबई में ज़्यादा दिखाई देता है। द एश एंड द फाइन और content in the solid waste of Mumbai is high due to practice of inclusion of the street sweeping and drain silt and the construction and the demolition debris. तो यहाँ पे हमको क्या ज़्यादा दिखाई देता है कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा होता है या फॉर एग्जांपल स्ट्रीट स्वीपिंग होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें वेस्ट दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट दिखाई देता है। However, the quantity of the waste paper is much less. Even the quantity thrown is up by the picked up by the people for the use of for the pick up by the people for the use as a fuel or for packaging material। यहाँ पे क्या बताया कि वेस्ट पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा भले भले ही वो उसका क्वांटिटी कम हो लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की तरह या हम बोलते कि पैकेजिंग मटेरियल की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। फूड सोल्ड बाय द रोड साइड हॉकर्स। तो हॉकर्स ये वेस्ट मटेरियल का पेपर का फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं। दिस लो वैल्यू is essential due to the large-scale recycling on the priority basis, while plastic and glass are recycled to the lesser extent। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉकर्स होते हैं रोड साइडर हॉकर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल मीन्स वेस्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास और प्लास्टिक का वहाँ पे इस्तेमाल कम किया जाता है। यहाँ पे देखिए द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको ये चार्ट दिया गया है। अभी हम देखते हैं हाउस होल्ड वेस्ट। वेस्ट जनरेटेड हाउस होल्ड इन जनरली एक्यूमुलेटेड इन स्मॉल कंटेनर जनरली प्लास्टिक बकेट फॉर द डिस्पोजल इनटू कम्युनिटी बिन्स। तो the community storage system is usually practiced in Mumbai. Individuals deposit their waste in the bins located at the street corner and the specific intervals. The community storage facility reduces the cost of waste collection and minimize the problem associated with the lack of on the site strong space। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली हाउस होल्ड में वो स्मॉल कंटेंट्स में किया जाता है। और वो जो स्मॉल कंटेंट्स होता है मीन्स हमारे घर का डस्टबिन और वो डस्टबिन या तो फॉर एग्जांपल जब हम फॉर एग्जांपल जो पेडेस्ट्रियन वगैरह होते हैं तो वह आते जाते जो स्ट्रीट का जो बाहर का डस्टबिन होता है वहाँ पे कचरा फेंका जाता है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी स्टोरेज। However, unless these community storage arrangements are conventionally located, households tend to throw their waste into the roadside gutters। अब क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या हो जाता है उसका अरेंजमेंट नहीं होता है तो जिसकी वजह से उसको गटर रोड साइड गटर में फेंक दिया जाता है। Even though the storage arrangements are conventionally located, waste tend to be scattered around the storage area, partly due to the indiscipline and partly as a result of scavenging of the waste by rat pickers and stray animals. Lack of civic awareness among the residents is proving to be the major hurdle in maintaining the cleanliness in Mumbai, and the problem is more serious in the slum, low and middle income areas। तो ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम कहाँ पे दिखाई देती है फॉर एग्जांपल डस्टबिन में कचरा तो डाला जाता है तो कभी कभी डस्टबिन आउट ऑफ हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा कचरे से भर जाता है तो उस टाइम उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया जाता है। जो रैक पिकर्स आते हैं वो भी कचरा तो उठाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लीनलीनेस मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हमको स्लम एरिया और लो और मिडल इनकम एरियाज में हमको ज़्यादा दिखाई देती है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन द डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इन मुंबई ओपन बॉडी ट्रक्स of 5 to 9 tons capacity are commonly used। Commercial sector like shops, offices, hotels use the community waste bins and their waste are also collected along with the household waste। तो ट्रांसपोर्टेशन डोमेस्टिक हम किसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें 5 to 9 टन्स कैपेसिटी ज़्यादा कचरा रहता है कि फॉर एग्जांपल शॉप्स का
या ऑफिस का या होटल का सब कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसको हाउस होल्ड कचरे के साथ डाला जाता है। Most shops do not open before the 9 a.m. and so they do not put their waste until then, which usually on the street until the next day's collection. ज़्यादातर हमको ये पता है कि दुकानें 9 से पहले नहीं खुलती हैं, तो ज़्यादातर वो अपना जो कचरा होता है वो रास्ते पे डाल देते हैं। The role of the rag picker. The thousands of the people in the Mumbai make their living from the waste like plastic products, production, cans, bottles, bone, hair, leather, glass, metal, etc. recovered from the municipal solid waste. All the metals, paper, plastic, glass, cardboard are readily marketable and even recyclable by the householders themselves or by the rag pickers. By the time the waste reaches community bins, it contains very little in the way of recyclable objects, consists of the vegetable and the fruit peeling, scraps of spoiled paper, and the plastic used toiletries, etc. तो यहाँ पे जो हम बोलते कि रैक पिकर्स का रोल कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल वो हर एक स्ट्रीट में जाके या जहाँ पे भी कचरा पड़ा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा उठाते हैं और उसको क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं और उसको बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी बीन्स हो या फिर रिसाइकेबल ऑब्जेक्ट हो या फॉर एग्जांपल फ्रूट पीलिंग हो या स्क्रैप स्पॉइल पेपर हो या हम बोलते हैं कि टॉयलेटरीज हो वो सब कुछ उठाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल साइट। इन मुंबई द वेस्ट इज डिस्पोज्ड बाय डिस्पोजिंग in the low-lying area. Disposal sites are selected in figure 2.3 on the basis of their closeness to the collection area. The new disposal sites are normally identified only when existing ones are completely filled. At the present, the major dumping grounds are at the Horai, Devanar, Mulund, and once the existing dump sites are filled, new sites will be identified. In most cases, the waste is simply dumped at the such site and the bulldozers are rarely used for compaction at the disposal site। तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल गोराई, देवनाथ और मुलुंड में ये सबसे ज़्यादा डिस्पोजल साइट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा फेंका जाता है। लेकिन वहाँ पे कचरा फेंकने के बाद अगर वहाँ पे कचरा फुल हो गया तो दूसरी साइड को ढूंढा जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फेंक सके, तो उसका डिस्पोजल करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए the next point is the incoming solid waste vehicles are not weighted and no specific plan is followed while filling the dump site. The provision for the leachate and the gas control do not exist. Um, the soil silver is the soil cover is rarely provided except at the time of the closure of the site. Most of the disposal site are unfenced and waste picking is commonly in the way, posing the problem in the operation of the site. The open burning of the site waste is the disposal site is most common for reducing volume of the waste and also for easy rat packing. This causes severe air pollution and the problem and the health problem in the surrounding areas. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो डिस्पोजल साइट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनफ्रेंड्स होते हैं, वेस्ट पिकिंग कॉमन होता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे की रहती है कि वहाँ पे आप खड़े नहीं रह सकते, उसका स्मेल होता है कि उसका हम बोलते कि उसका गैस कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उसका बोलते हैं लीकेज वो अलग हो मीन्स कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इट कॉजेज द एयर पोल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द सराउंडिंग। जो आसपास के जो वातावरण होता है या आसपास के जो लोग होते हैं उनके लिए डेंजरस बन जाता है।
action plan for the solid waste management नहीं करते हैं. देखिए, considering the problem of solid waste management in Mumbai as guidelines from the Supreme Court of India has emerged in the following chart. यहाँ पे देखिए आप किस तरह से यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया कि ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड वेस्ट, डोमेस्टिक हाउस हैजर्ड वेस्ट, recyclable waste, waste and construction, demolition waste, we dispose it in the hard hand cart or the tricycle, special bin, hazard waste and hand over the recycle. फिर यहाँ से यहाँ पे आता है. तो देखिए आपको ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है. Several attempts are under the way. To improve the management of the solid waste. Deliberation on the administrative, technical, and financial and legal issues are considered for the feasible means of waste management. Waste management. The National Environment Engineering Research Institution, on behalf of Ministry of Urban Affairs, published the manual and the municipal solid waste management rules under the Environmental Protection Act by coordinates efforts of the municipal agencies. तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके जो पे जो हम बोलते कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एरिया के हैं वो, और हम बोलते कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये वहाँ पे काम करते हैं, म्यूनिसिपल एजेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. तो Ministry of Environment and Forest, the Government of India, the Central Pollution Control Board, and the State Pollution Control Board. The recommendation of the expert committee constituted by the Supreme Court of India and issues the direction which the country is moving towards the improvement of the municipal solid waste management. So, Ministry of Environment and Forest की और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड आहे आहे इथे ग्रीन लाईट दिसली आहे. तो ये साथ में मिलकर जो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कौन सा स्टेट और कौन सी कंट्री यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करता है.